بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیوب میں خوش آمدید۔ انسانیت کی ایک ایسی عبرتناک داستان جسے سن کر آپ کو بھی رونا آ جائے۔ ایک شخص کہتے ہیں ایک لڑکی جو کہ روزانہ برقع پہن کر ہیرا منڈی میں ناچنے آتی تھی، مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے سب تماشبین محو ہو جاتے تھے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہوتی جا رہی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملنا ہے اور مجھے ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا ہے۔ اس دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں بھی وہ روانی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پر جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ جب میں دروازے کے تھوڑا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ لڑکی اپنی مالکن سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی کہ آج میری ماں مر گئی ہے۔ جب مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ لڑکی رو رو کر بے اختیار کہنے لگی کہ سیٹھ جی آج میری ماں مر گئی ہے۔ اس کے جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا ہو۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا۔ وہ لڑکی بولی کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا نے آج پیسے ہی نہیں دیے۔ کہتی ہے بہت مندہ ہے، تماشبین کوٹھے پر نہیں آتے اور جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ نہیں لٹاتے۔ میری مالکن کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ وہ لڑکی برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کے کفن و دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا تھا۔ میں نے گاڑی اس کی طرف موڑی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھی۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی وہ بوڑھی عورتیں بچہ کو اسے سونپتے ہوئے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ یہ بلبل کا بچہ ہے، یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی سی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ بالآخر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ شاید بتا
बताना नहीं चाह रही थी। मेरे दोबारा पूछने पर इसने आहिस्ता आहिस्ता से कहा, अफशां, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई कोई है? इसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है क्या? उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया है। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई है। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नेका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोज़ाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बच्चा खुचा खाना जो मैं घर लाके अपनी माँ को खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हो जाती हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सब के सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं वो फिर धंसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रही हो। मैं कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और इसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने पूछा इससे। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले में क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ जी पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस मुआशरा में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहाँ से मैं उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। मैंने लरजती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये रकम तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा तो एक काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशां हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी, इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी और इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज़ रो पड़ी। मुझे वहाँ से रुका नहीं गया। मैंने अफशां के घर का पता लिया और इसको अपना वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अफशां, जो तुमने मुझे दिया है इसका एहसान उम्र भर नहीं उतार पाऊँगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जगा दिया है जो दौलत और शैतानी हवस के नीचे मैं दबा कर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया है। अफशां, इस वाक़े के बाद इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हुआ और हर रोज़ इसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, इससे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशां को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल में ख्याल किया कि इस मसीहा को मिल कर आऊँ जिसकी वजह से मैं इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से पाक हो चुका हूँ, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आ जाती। कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था और फिर वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशां को भूला नहीं था
वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और इसका बेटा भी जवान हो गया होगा, पता नहीं किसी काबिल बना होगा या नहीं, अपनी माँ का सहारा बना होगा या नहीं। मेरे बच्चे भी जवान थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और इसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है मालूम नहीं साहिब, पहली बार इनको देखा है। मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया, अच्छा इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। दिल में सोच रहा था कौन हो सकता है। यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरा के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी। इसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था कि वो हमारे इलाके का नया DSP अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। जो ही इसने अफशा का नाम लिया मेरे जहन में इसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशा थी। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही हैं जो तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हें इस मकाम तक लाने का ज़रिया। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ जी, जिस तरह आपने हम बेसहारा और बेकस लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नज़रों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था। ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा न करें, मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज इसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था मगर ये सच था। अफशा सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा है। आपके दिए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया है, अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया है। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि ये कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर से बोली, सेठ जी, आज वो वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो मैं नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे मेरा बेटा वो ज़रूर उतारेगा, और आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकार मत करें। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नज़रों से देख रहा था। आखिर इसने वो ही कर दिखाया। यकीनन कौल करार निभाना, वादा पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में इसकी इज़्ज़त और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा ना करें। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बाजिद थी। मुझे इसके सामने हार मानना पड़ी और वो तमाम पैसे जो मैं इसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था इसको वापस लेने की हामी भरी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलोगी क्या? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा। क्यों नहीं चलूँगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो। अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर इसके बाद रूबी से भी बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में इसे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशा के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। हमने अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को भला इससे क्या एतराज़ हो सकता था? वो फूले से नहीं समा रही थी और यूं मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुक़ जो एक तवाइफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, इसका इख्तिताम एक निहायत मुहज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका ज़रूर देती है,
کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی سبق حاصل ہوا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ والسلام۔